हेलो स्टूडेंट्स एंड माय डियर फ्रेंड्स। लास्ट क्लास में हम लोगों ने बात करी थी डीडीएल कमांड्स की, डेटा डेफिनेशन लैंग्वेज कमांड्स की। होप आप लोगों ने वो वीडियो देखा होगा और आपको डीडीएल कमांड्स अच्छे से समझ में आ गई होगी। आज हम बात करेंगे डीएमएल कमांड्स। डीएमएल कमांड्स, द डेटा मैनिपुलेशन लैंग्वेज कमांड्स। These commands are used to manipulate data stored in a database objects tables, right? ये वो कमांड्स हैं बेटा जो डेटा को मैनिपुलेट करती हैं और वो डेटा जो हमारा डेटाबेस टेबल्स में स्टोर है, राइट? अब इसमें हमारे पास तीन मेन कमांड्स हैं डीएमएल में। थ्री मेन कमांड्स आर देयर। अब वो तीन मेन कमांड्स कौन कौन सी हैं? इंसर्ट, अपडेट एंड डिलीट। जैसे हमारे पास तीन मेन कमांड्स थी डीडीएल में, क्रिएट, ऑल्टर एंड ड्रॉप। क्रिएट कमांड इज यूज्ड टू create the database objects. Alter command is used to modify the structure of the database objects, and drop command is used to remove the database objects. Similarly, in DML, insert command is used to insert the record in a table, right? In a database table. Update command is used to modify the data stored in a database table, and delete command is used to remove the data, remove the records from the database table, right? So let's start with the insert command, right? So let's start with the practical today. Now the first I have to open my database. So I'll open my database, that is, and the name of my database is what command should I use? You know, last class we have talked about that command. Last class में हम लोगों ने बात करी थी कौन सी कमांड हम यूज करते हैं? use command. Use, and the database name is Nitin. Now the database is changed. Now I want to show the total tables available in this particular database. So which command we should use? Show command. Show tables. So I have one table in this database. Now the very first thing, before inserting a data, I need to know how many fields are there and the name of the fields. जब मुझे यही नहीं पता होगा कि इस टेबल में कौन कौन सी fields हैं, तो how can I store my data in a table? तो very first thing is to find out the name of the fields. So for that I have to show the structure of the table. So how to show the structure of the table? DESC command or a describe is used to display the structure of the table. Student. Now so this is my table, right? This is my table structure, right? Now first field is admission number, second is name, class, exam date, total, percentage and result. लास्ट क्लास में हम लोगों ने डेटा टाइप्स की बात करी थी। फील्ड जब हम लोगों ने बनाई थी, टेबल बनाई थी, मैंने इसमें एक एक्स्ट्रा फील्ड ली, एक एक्स्ट्रा डेटाबेस के डेटा टाइप के साथ बेटा, दैट इज एग्जाम डेट विद द डेट डेटा टाइप, राइट? एग्जाम डेट विद द डेट डेटा टाइप, राइट? तो अभी डेट कैसे स्टोर करेंगे, कैसे वर्कआउट करते हैं, वो भी हम बात करते हैं। तो नाउ तो टुडेज फर्स्ट कमांड इज इंसर्ट कमांड। इंसर्ट इनटू, किस टेबल में मुझे डालना है? इंसर्ट इनटू, तो यहां मुझे टेबल का नेम मेंशन करना है, राइट? कि मैं किस टेबल में एक रिकॉर्ड होल्ड करना चाहता हूं। तो इंसर्ट इनटू स्टूडेंट। नाउ नेक्स्ट लाइन, मेरी हैबिट है मैं नेक्स्ट लाइन में लिखता हूं, आप एक सिंगल लाइन में लिख सकते हैं। द नेक्स्ट क्लॉज इज वैल्यूज। नाउ द फर्स्ट फील्ड इज एडमिशन नंबर, तो आई हैव टू गिव एडमिशन नंबर हियर। तो एडमिशन नंबर सपोज 101। नेक्स्ट फील्ड इज नेम, नेम इज अ varchar टाइप, तो आई हैव टू यूज सिंगल कोट्स और डबल कोट्स, राइट? So the character value must be enclosed in a quotes. So suppose Nitin Mathur
comma class. Again single quotes. It's a character type. 12th A. Now class is 12th A. Now the exam date. It's a date data type, and date data type is also enclosed in a single quotes. Beta, date data type is also enclosed in a single quotes. And here when we mention a date, जब भी हम date mention करेंगे, right, पहली चीज कि date हमेशा single quotes में mention होगी, और दूसरी बात कि जब भी डेट मेंशन होगी बेटा तो उसका जो फॉर्मेट होगा वो फॉर्मेट क्या होगा, पहले 4 डिजिट्स में ईयर होगा, 2 डिजिट्स में मंथ एंड देन 2 डिजिट्स में डेट. राइट, 4 डिजिट्स में ईयर, 2 डिजिट्स में मंथ एंड 2 डिजिट्स में डेट. राइट, नाउ तो सपोज 2007 0307. Right, this is date of exam. Right, now the total marks, suppose total marks are 431 comma percentage should be suppose 86 point suppose 2. अभी बाद में हम इसको ठीक कर लेंगे, अभी एग्जैक्ट तो राइट, अभी हम कमांड्स पढ़ेंगे आगे तो हम इसको चेंज कर देंगे. नाउ एंड द रिजल्ट पास. राइट, नाउ ये दिक्कत होती है ना कि एकदम अचानक परसेंटेज हमें पता ही नहीं, हम कैसे पहले हम कैलकुलेट करें फिर परसेंटेज इसमें फीड करें. राइट, तो अभी हम बात करेंगे कि हम इसको बाईपास कैसे करेंगे. राइट, नेक्स्ट कमांड में. ओके, नाउ semicolon and then enter. Now one record saved, one row affected, that means query is okay. मेरी टेबल में एक रिकॉर्ड होल्ड हो गया. Now I want to check, right, कि whether this record is stored in a table or not. भाई अगर मुझे ये चेक करना है कि मेरा ये रिकॉर्ड टेबल में सेव हुआ है या नहीं हुआ, then what should I do? Which command should I use? तो I will use select command. Select star from student. Student is a table name. अभी हम सिर्फ इसको यूज कर रहे हैं. अभी इस कमांड के बारे में डिटेल में हम एक क्लास में बात करेंगे. एक पूरी क्लास हम सिलेक्ट स्टेटमेंट के बारे में वर्कआउट करेंगे, तो उस क्लास में हम डिटेल में बात करेंगे सिलेक्ट स्टेटमेंट के बारे में. क्या होती है सिलेक्ट स्टेटमेंट, कैसे यूज होती है, क्या क्या इसकी क्लॉजेस हैं, कैसे उन क्लॉजेस को हम यूज करेंगे. राइट, तो एक प्रॉपर डेडिकेटेड क्लास हम यूज करेंगे select statement के लिए. Right, okay, now so this is my data in a table. Right, this is the data in my table. Admission number 101, name Nitin Mathur, class 12th A, exam date 2007-307, total marks 431 percentage, 86.2, and result is pass. Now I want to add one more record, but I want to bypass percentage and result. I don't want to store percentage and result. Right, now to bypass any field in a table, so there are two methods to bypass the fields. अगर हम fields को bypass नहीं करते हैं तो हमें डेटा मैंडेटरी है कि हम डेटा फीड करें. अगर हम डेटा फीड नहीं करेंगे तो एरर आ जाएगी. आई विल शो यू अगेन. Insert into student values. Now admission number is 102, Nimit Mathur, class 90, okay, and if I bypass these two, if I don't write values for these two fields, now what will happen?
अगर मैं इन दो फील्ड्स में डेटा फीड नहीं करना चाहता हूं बेटा और मैंने ये दो फील्ड्स यहां पे छोड़ दी तो क्या होगा, इट विल जनरेट एन एरर। अब वो एरर क्या होगा वो देखिए, कॉलम काउंट डजंट मैच वैल्यू काउंट एट रो 1। जो कॉलम काउंट है बेटा वो हमारा वैल्यू काउंट से मैच नहीं हो रहा है। टोटल कॉलम्स कितने हैं हमारे पास, 1 2 3 4 5 6 7, लेकिन वैल्यूज हमने कितनी फीड करी है, 1 2 3 4 5, राइट। वैल्यूज हमने दी 5 और होनी कितनी चाहिए थी 7, तो उसने दोनों का काउंट मैच किया और एरर जनरेट कर दिया, राइट। तो ये हम नहीं कर सकते। तो लेकिन अब मुझे वर्कआउट ऐसे करना है कि मुझे उन दो फील्ड्स में डेटा फीड नहीं करना है, देन व्हाट शुड आई डू। तो फॉर दैट हियर what I'll do, this is the first way. There are two ways to do this thing. This is the first way. Just put comma and set null without quotes. Null has a special meaning in the database. Null has a special meaning in the database, right? So I can store null here. Null means empty. The empty area, bilkul empty, nothing is there. So it is empty area. Now, okay, query is okay, one row affected. Now again, select star from student. Now two records are there with the null values. Second way to store a data, right? तो second way क्या है बेटा, उसके लिए हम क्या करेंगे, again insert into student now। अब यहां पे बेटा पहले हम क्या करेंगे, ब्रैकेट में फील्ड नेम्स दे देंगे जिन जिन फील्ड्स में हमें डेटा फीड करना है, राइट। सपोज मैं अभी एग्जाम डेट भी नहीं देना चाहता, आई डोंट वांट टू गिव एग्जाम डेट राइट नाउ, तो मैं फील्ड नेम्स दूंगा एडमिशन नंबर कॉमा नेम कॉमा क्लास कॉमा total, right? I want to store the data in these 4 fields only, right? Instead of those 7 fields, I'm storing data in these 4 fields, right? अब मैं सिर्फ 4 फील्ड्स में डेटा डाल रहा हूं, मुझे 7 की 7 फील्ड्स में डेटा नहीं डालना। तो जिन 4 फील्ड्स में डेटा मुझे फीड करना है बेटा, वो 4 फील्ड्स मैंने यहां पे मेंशन कर दी। नाउ वैल्यूज, तो फर्स्ट फील्ड इज एडमिशन नंबर 103 कॉमा नेम नमन माथुर कॉमा क्लास 4th E comma and now total marks. Total marks are 469 semicolon enter. One row affected, that means query is okay. Data मेरा टेबल में स्टोर हो गया. Again I'll show the data. Select star from student, right? तो फर्स्ट फील्ड, सेकेंड फील्ड एंड थर्ड फील्ड, इन तीनों फील्ड्स में मेरा ऑटोमेटिकली नल आ गया, राइट? तो ये दो तरीके हैं बेटा हमारे पास टेबल में डेटा फीड करने के लिए, फील्ड्स को बाईपास करके। इफ आई वांट टू बाईपास द फील्ड्स, इफ आई डोंट वांट टू स्टोर सम डेटा, राइट? अगर मुझे कुछ डेटा स्टोर नहीं करना है तो दीज आर द टू वेज, राइट? तो दिस इज माय insert command, कि how insert command works. Now next is update command. Update command is used to modify the data stored in database tables.
कि जो डेटाबेस टेबल में डेटा स्टोर्ड है बेटा, उस डेटा को मॉडिफाई करने के लिए हम लोग अपडेट कमांड का यूज करते हैं। तो अब यहां पे जब हम अपडेट कमांड का यूज करेंगे, सपोज मुझे अब ये परसेंटेज चेंज करनी है, मैं इस परसेंटेज को ठीक करना चाहता हूं, राइट? तो मैं इस परसेंटेज को कैसे ठीक करूंगा? तो उसके लिए हम अपडेट कमांड यूज करेंगे। मुझे पता है परसेंटेज मैंने गलत दी है, तो अपडेट नाउ स्टूडेंट, राइट? अच्छा, एक चीज ध्यान रखिएगा बेटा, हमने अभी इंसर्ट कमांड यूज करी, हमने अब अपडेट कमांड हम यूज कर रहे हैं। डीडीएल कमांड जब हम यूज करते हैं तो वहां पे टाइप ऑफ ऑब्जेक्ट देना मैंडेटरी होता है, राइट? कि क्रिएट टेबल एंड देन टेबल का नेम, या क्रिएट डेटाबेस एंड देन डेटाबेस का नेम, राइट? ऑल्टर टेबल एंड देन टेबल का नेम, राइट? ड्रॉप टेबल एंड देन टेबल का नेम। बट इन डीएमएल कमांड्स वी डोंट नीड टू मेंशन द टाइप ऑफ ऑब्जेक्ट, we don't need to mention the type of object. DML commands by default works on table. DML commands by default works on table बेटा, right? तो हमें यहाँ पे type of ऑब्जेक्ट मेंशन करने की रिक्वायरमेंट नहीं है बेटा, राइट? हम यहाँ पे डायरेक्ट टेबल का नेम देंगे क्योंकि ये डायरेक्ट टेबल पे वर्कआउट कर रही है। तो अपडेट स्टूडेंट सेट परसेंटेज is equals to set percentage, set is a clause, percentage is a field name, is equals to, कैसे कैलकुलेट करते हैं हम परसेंटेज? जो नॉर्मल फॉर्मूला हम परसेंटेज कैलकुलेट करने के लिए यूज करते हैं बेटा, वो सेम फॉर्मूला हम यहां पे यूज करेंगे। तो परसेंटेज इज इक्वल्स टू टोटल डिवाइडेड बाय 5। मैंने डायरेक्ट डिवाइडेड बाय 5 क्यों नहीं कहा? क्योंकि आउट ऑफ 500 मार्क्स हैं, राइट? देखो, 2 rows affected, rows match 3, changes to warning 0, ठीक है? select star from student। ओह, मेरी परसेंट, मैंने बिल्कुल सही परसेंटेज लिखी थी भाई, 86.2। अरे वाह, गुड, ओके, ठीक है। देखो, इसीलिए उसने यहाँ पे मुझे ये दिया कि भाई 2 rows affected, 3 change, 2 warnings, राइट? तो रोज मैच कितनी हुई? 3। मैच रोज 3 हुई, लेकिन चेंज कितनी हुई? 2, राइट? ना सपोज अब मुझे रिजल्ट चेंज करना है, राइट? अब मैं रिजल्ट देना चाहता हूं कि रिजल्ट मुझे पास या फेल देना है, राइट? अच्छा, एक रिकॉर्ड और डालते हैं जिसमें हम स्टूडेंट को फेल करेंगे, फिर हम देखते हैं उसको कैसे वर्कआउट होगा। इंसर्ट इनटू स्टूडेंट वैल्यूज 104 कॉमा कमल शर्मा कॉमा 11th B कॉमा 1 total marks suppose 186, null, right? Select star from student, right? 4 records are there. Now अब मुझे रिजल्ट वर्कआउट करना है, अपडेशन करनी है मुझे रिजल्ट कॉलम में, राइट? तो जिनकी भी परसेंटेज मेरी 40 से अबव होगी वो पास, और जिनकी परसेंटेज 40 से बिलो होगी वो फेल, राइट बेटा?
नाउ तो पहले मैं परसेंटेज दोबारा से अपडेट कर देता हूं, अपडेट स्टूडेंट, राइट। अब सिर्फ एक चेंज हुआ हमारा, मैच 4 हुए थे लेकिन चेंज 1 हुआ सिर्फ, क्योंकि बाकी में तो परसेंटेज थी हमारी, राइट। नाउ अब हम रिजल्ट पे वर्कआउट करेंगे। अपडेट स्टूडेंट सेट रिजल्ट इज इक्वल्स टू पास। अच्छा, अगर मैं ये देता हूं सेट रिजल्ट इक्वल्स टू पास, तो वो सबको पास कर देगा, सारे स्टूडेंट्स पास हो जाएंगे मेरे। लेट्स सी, राइट। ओके, सिलेक्ट स्टार फ्रॉम स्टूडेंट, या अब क्योंकि कमल की परसेंटेज 37.2 है तो उसको फेल होना चाहिए कायदे से, राइट। बट इसको भी उसने पास कर दिया, क्योंकि मैंने क्या दिया था, मैंने कहा था रिजल्ट इक्वल्स टू पास, तो उसने सबको पास कर दिया। जबकि मुझे यहां पे एक क्राइटेरिया रिक्वायर्ड है, क्राइटेरिया मींस कंडीशन, राइट। तो अब मैं यहां पे अपडेट स्टेटमेंट को कंडीशनली यूज करूंगा बेटा, राइट, कि एक स्पेसिफिक कंडीशन के बेस पे वो उसको वर्कआउट करेगा, अपडेट करेगा मेरे टेबल में डेटा को। कैसे? अपडेट स्टूडेंट FAIL फेल, नाउ सेट रिजल्ट इक्वल्स टू फेल। अब कंडीशन कैसे देंगे? तो कंडीशन देने के लिए बेटा हम यूज करेंगे वेयर क्लॉज। यहां पे वेयर what percentage, what should be the condition, percentage should be less than 40, right। अगर स्टूडेंट फेल है दैट मीन्स कि उसकी परसेंटेज 40 से बिलो है बेटा, तो परसेंटेज लेस देन 40, राइट। अपडेट स्टूडेंट सेट रिजल्ट इक्वल्स टू फेल वेयर परसेंटेज लेस देन 40, राइट। ओके, अगेन सिलेक्ट स्टार फ्रॉम स्टूडेंट, राइट। तो सिर्फ वो फेल हुआ कमल, बाकी सब पास हो गए, राइट बेटा। तो जिसकी परसेंटेज 40 से बिलो है वो फेल, और जिसकी परसेंटेज 40 से अबव है वो पास, राइट। दिस इज द थिंग। तो दिस इज माय अपडेट स्टेटमेंट, हाउ अपडेट स्टेटमेंट वर्क्स। नाउ नेक्स्ट, third DML statement, that is delete statement. Delete statement is used to remove a record from the table. Delete from student, यहां पे अगर मैं यूज करता हूं delete from student, तो ये टेबल में से सारे रिकॉर्ड्स को रिमूव कर देगा। एक बार में जितने रिकॉर्ड्स टेबल में हैं वो सारे के सारे रिकॉर्ड्स रिमूव हो जाएंगे बेटा, राइट। एक बार में ही वो सारे रिकॉर्ड्स रिमूव कर देगा। और अगर मैं चाहता हूं किसी स्पेसिफिक रिकॉर्ड को रिमूव करना, अगेन आई हैव टू यूज क्राइटेरिया, दैट मींस द वेयर क्लॉज, राइट। कंडीशनली आई हैव टू रिमूव द रिकॉर्ड। तो डिलीट फ्रॉम स्टूडेंट वेयर result, either you can search by result or you can use admission number, whatever you want, whatever column you want for your criteria, right। जो भी आपकी कंडीशन है, जो आपका क्राइटेरिया है, उसके अकॉर्डिंगली आप वर्कआउट कर सकते हैं बेटा। तो डिलीट फ्रॉम स्टूडेंट वेयर रिजल्ट इज इक्वल टू, सपोज मैं जितने भी फेल स्टूडेंट्स हैं उनका रिकॉर्ड यहां से रिमूव करना चाहता हूं, राइट। तो डिलीट फ्रॉम स्टूडेंट वेयर रिजल्ट इक्वल टू फेल, one row affected, and again select star from student, right। so one record is removed from the table, right। now so it's all for today. Hope you understand all the DML commands. If you like the video, so please like my video, share my video and subscribe my channel. Stay healthy, stay safe,